Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to see today contest problem. So from last couple of days I have not started the lead code because of some personal work. So what I'll do, let's go with this problem today and we'll try to understand what this question is saying that. Okay, so very first let me go through the statement. Okay, so if you see the statement, its statement is saying that you are given a zero indexed array that is called nums consisting of positive integers. ठीक है, so example 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे we have given nums 2, 6, 3 and 4, right? These are the positive integers we have given, ठीक, एक array है, ठीक है. So you can do the following operations on the array any number of times. मीन्स हमें ये एरे दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम कर सकते हैं. हम लोग सेलेक्ट एन इंडेक्स आई इन सच अ वे दैट द इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन n-1. रिप्लेस ईदर ऑफ nums at I or nums at i+1 with their GCD value. Okay, so we have to replace either value, either the current index or the next index, okay, with their GCD value. We'll talk about what is this GCD. Let's return the minimum number of operations to make all the elements nums equal to 1. So if it is impossible, return -1. The GCD of two integer is the greatest common divisor of two integers. Okay, so we'll try to understand in the very simple steps. So मैं क्या करता हूँ, कुछ steps में हम लोग जाते हैं करने के लिए. क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो कि we have given this array, right, and we can perform any number of times the operations. What are the operations are there? That you can take the GCD of these two value and you can replace either of them, right? और वो जो इंडेक्स हम सेलेक्ट करेंगे it will be between 0 to n-1, mean the range of the array elements, means start from 0 and it will go to the last index. Okay, then we have to return the minimum number of operations, right? How many times we are going to perform the operations that we have to track, right? So that all the elements of the nums, means these should be become 1. और यही कह रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रिटर्न कर दो -1. So as you can see we have given these elements, right? So very first choose index 2, it is saying I equal to 2 and then replace this value. Okay, so let's try to understand first what this question is saying that. Okay, so अगर हम बात करें, give me 1 second. Yeah, this is my notepad. Okay, let's try to understand the concept first. ठीक है, the very first what we should understand that what is GCD. What is GCD? Okay, so GCD is stands for the, you can say, greatest common divisor बोलते हैं. Okay, divisor you can say. अगर आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट लगे, यू कैन पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स साइड और एनी डाउट यू हैव. ओके, सो इसको GCD बोलते हैं और इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू ऑल्सो से HCF, अगर आपको याद हो, राइट? वी कैन ऑल्सो से HCF. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते थे इसको. ठीक है, सो इसमें से आप कोई भी चीज बोल सकते हो, या तो आप GCD बोल सकते हो या HCF बोल सकते हो. ठीक है, एनी ऑफ दिस टू वी कैन से दैट. ठीक है ना? सो आइदर यू से GCD और HCF, राइट? बोथ मीनिंग इज सेम, मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD is the largest possible integer that divides two number or more numbers, right? You can say. And हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, विदाउट एनी रिमाइंडर. यू नो द रिमाइंडर, राइट? दैट लेट्स सपोज अगर किसी ने GCD निकाला, राइट,
और जीसीडी निकालना है ए एंड बी की वैल्यू, राइट। मीन्स इन दोनों में जो नंबर होगा ए एंड बी में, राइट, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ, मीन्स वी कैन से we have to return the biggest number that divides both a and b। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या हो गया, स्क्रीन नीचे क्यों जा रहा है, हाँ ओके। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर वी आर टेकिंग जीसीडी ऑफ लेट्स सपोज 8 ले लेते हैं एंड 12 ले लेते हैं, ओके। सो जीसीडी ऑफ 8 and 2 इज व्हाट, क्या होगा, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8 का जो डिवाइजर है, व्हाट इज द 8's डिवाइजर, ठीक है। सो विल से ओके 8's डिवाइजर विल बिकम 1 2 4 and 8। मीन्स 1 8 टाइम्स से डिवाइड हो सकता है, 8 4 टाइम्स से डिवाइड हो सकता है, 4 2 टाइम्स डिवाइड होता है, 8 बाई सेल्फ 1 टाइम हो सकता है, राइट। ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम 12th की बात करें कि 12 की वैल्यू डिवाइजर कौन कौन होगा, राइट। सो वेरी फर्स्ट 1 से डिवाइड होगा, राइट, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 होगा एंड 12। सो दीज आर द नंबर्स दैट 12 विल बी डिवाइजर, 12 का डिवाइजर होगा, राइट। सो इसमें से कॉमन कौन सा नहीं है, राइट, उसको छोड़ देंगे। एंड व्हाट आर द कॉमन्स, लाइक मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे, कॉमन 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है एंड 4 है, बस ये सारे कॉमन है। अब इन जितने भी कॉमन है अगर हम इनको इकट्ठा करें तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 एंड 4, दीज आर द नंबर्स। इसमें से हाईएस्ट कौन है, तो 4, एंड दैट इज वाई आंसर कितना होगा, 4 इज द आंसर ऑफ, मीन्स जीसीडी ऑफ 8 and 12 इज 4। अब तो समझ में आ गया होगा कि जीसीडी क्या होता है, राइट। टू अंडरस्टैंड द जीसीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज वाई मैंने क्या बोला, गिव मी वन सेकेंड, कि जीसीडी इज नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर मैं एक पेज पे लूँ, देखो मैंने क्या बताया इसको कि व्हाट इज जीसीडी, जीसीडी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर दोनों की वैल्यू ले तो ए और बी जो हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि 8 and 12 का डिवाइजर लेंगे वो 4 होगा, क्योंकि 8 डिवाइजर इज 1 2 4 and 8 and 12 divisor is 1 2 3 4 6 and 12. So if you find the common factor, highest common factor, so it will come 4. समझ में आया, what is the divisor, मतलब GCD मतलब डिवाइजर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी गिव मी वन सेकेंड। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। वेरी फर्स्ट what the question saying that you have given the array that is called nums, as you can see, right। और ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो लेट्स सपोज ये क्या कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक ऑपरेशन लगाना है इसके ऊपर, राइट। मीन्स वी आर गोइंग टू टेक वन ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में क्या करना है, वी हैव टू पिक एन इंडेक्स। जो इंडेक्स हम पिक करेंगे 0 1 2 3, दीज आर द इंडेक्स, और इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एरे में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, राइट। एंड कहाँ तक जाता है, n-1। तो अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, राइट। मीन्स इन वन ऑपरेशन वी हैव टू पिक एन इंडेक्स, राइट, आई बिटवीन 0 to what, n-1। तो 0 से 3 हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर सिलेक्शन, वी हैव टू रिप्लेस ईदर, लेट्स सपोज आई हम चूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू चूज करते हैं इसमें से, तो हमें नम्स एट आई बोल सकते हैं या नम्स एट आई प्लस 1। सो यहाँ देख सकते हैं नम्स एट आई एंड नम्स एट आई प्लस 1, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाना है और उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है कि अगर हम नम्स एट आई प्लस 1 की बात करें तो इनमें से दोनों में से कोई एक इंडेक्स हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर हम लोग उसका जीसीडी फाइंड कर ले, जीसीडी, और ये जो भी जीसीडी वैल्यू आएगा, राइट, इस वैल्यू को रिप्लेस करना है आइदर नम सेट
आई या नम सेट आई प्लस वन। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट जो ऑपरेशन है ऑपरेशन वन, राइट, जब ये ऑपरेशन वन हुआ ओपी वन, तो क्या हुआ, इंडेक्स टू सिलेक्ट हुआ। इंडेक्स टू सिलेक्ट हुआ मीन्स वी हैव टू रिप्लेस नम सेट टू। नम सेट टू रिप्लेस होगा, क्यों? क्योंकि अगर जीसीडी हमें लेना है तो जीसीडी ऑफ 3 and 4, तो नम्स एट 2 पे कौन है, 3 है। अगर आई इंडेक्स कौन सा चूज किया, इंडेक्स चूज किया 2, तो 2 पे हमें क्या मिला, वी गॉट व्हाट 3 एंड आई प्लस 1 पे क्या है 4, तो 3 और 4 का जो कॉमन डिवाइजर होगा 1 होगा। ऐसे करके हमने क्या करना है, जीसीडी निकाल दिया, तो ओके, तो इस पोजीशन पे क्या करना है, अब इसको अपडेट मार देना है। पहले कितना था, देखो 3 था, राइट, 2 पे, अब यहाँ पे 1 हो गया। Similarly, you will perform operation 2, operation 3 and operation 4, and you will make all the elements of the array as a nums 1, right? Sorry, 1 we can say. और जब ये हो जाएगा तो हमने परफॉर्म करना है कितने ऑपरेशंस लगे, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 4। सो हमने ट्रैक किया कि टोटल 4 ऑपरेशंस हमें लगे। सो वी हैव टू रिटर्न दिस आंसर। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, राइट। ओनली वी हैव टू रिमेंबर दैट की फैक्टर। की फैक्टर क्या है, हमें जीसीडी लेना है, राइट, जीसीडी, और जो भी जीसीडी निकाले उससे हमें क्या करना है, अपडेट करना है वैल्यू को। तो कोशिश हमें ये करना है कि जब भी हम जीसीडी ले, कोई भी वैल्यू ले, लेट सपोज कि ये 1 है और ये वैल्यू आता है x है, राइट, तो जब भी हम जीसीडी ले, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट जीसीडी, इट शुड कम विद द वैल्यू शुड ऑलवेज कम 1। अगर वैल्यू 1 आता है जीसीडी का तो हमें उसे अपडेट मारना है। तभी सिंपल सी बात है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या हो जाएंगे, 1। आप गौर करोगे जितने का जीसीडी हमने चूज किया, वी हैव टू सेलेक्ट इन सच अ वे दैट जीसीडी भी ऑलवेज कम व्हाट 1। अगर ऑलवेज 1 आता है जीसीडी मीन्स वंस देयर इज 1 एनीवेयर, let's suppose in all these cases 6 1 2 1 1 4, in all these cases 1 common tha, right? Once we get the 1 you can make all the elements 1, right? इसीलिए हमने वेरी फर्स्ट चूज किया 3 and 4। 3 and 4 चूज करेंगे तो सिंपल जीसीडी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट, एंड दैट इज वाई यू आर एबल टू डू व्हाट, जीसीडी फॉर ऑल। तो कहने का मतलब ये है, गिव मी 1 second गाइज, लेट मी क्लीन इट, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीसीडी लेट सपोज 1 लेते हैं एंड x, इट विल ऑलवेज कम 1, राइट। सो वंस देयर इज अ 1, राइट, एनीवेयर, आइदर हियर और यू कैन टेक लाइक दिस, आउट जीसीडी ऑफ दिस, बोथ विल गिव यू 1, एंड दैट इज वाई ऑल दीज केसेस यू गॉट द 1, राइट, मीन्स यू कैन स्प्लिट इट टू इट्स नेबर, ठीक है, 1 यहाँ पे मिलेगा। इफ the overall GCD of the entire array is greater than 1, right, it is impossible to find, then उस केस में -1 हमें रिटर्न करना है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम शॉर्ट में अगर बात करें कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है, इट इज सेइंग दैट इफ एनी एलिमेंट्स आर ऑलरेडी 1, राइट, और ईच नन 1 कैन कन्वर्टेड टू द 1 सिंपली, राइट। सो लेट्स सपोज अगर हम ऑपरेशन 1 की बात करें, लेट मी क्लीन हियर, ओके, लेट्स सपोज कि हम ऑपरेशन 1 की बात करते हैं, ठीक है। इन ऑपरेशन 1 देयर आर सम एलिमेंट 1, राइट, और देयर आर अदर एलिमेंट्स व्हिच इज नन 1 बोल सकते हैं, नन 1, देयर इज 1 एंड नन 1, एंड दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू, इफ लेट सपोज हम अगर आंसर की बात करें, जस्ट यू नीड टू डू व्हाट, n माइनस काउंट ऑफ 1s, सिंपली हमें मिल जाएगा। काउंट ऑफ 1s करेंगे, हमें आंसर अपडेट हो जाएगा और हमें क्या कहते हैं उससे ऑपरेशंस पता चलता जाएगा, राइट। सो इफ देयर आर नंबर ऑफ 1s, if we are able to find it, right, we will just need to do what, subtraction. So we will find the shortest subarray whose GCD 1 and then we'll turn the array into single one. समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग अगर टोटल निकाले वहां पे उस केस में क्या होगा, लेंथ -1 प्लस n -1, और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, n प्लस लेंथ -2, राइट। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो ये मैथमेटिकली मैं समझा रहा हूँ, अगर समझना है तो
अदरवाइज अगर ऐसा कोई सब एरे नहीं है जिसका जीसीडी 1 नहीं है, राइट, इन दैट केस सिंपली हम विल रिटर्न करेंगे -1, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द कोड, सो डोंट वेस्ट मच टाइम. लेट्स ट्राई टू फोकस. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट गाइस, राइट. वेरी फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें नम्स दिया हुआ है, करेक्ट. तो हमें सबसे पहले में क्या करना चाहिए भाई, गिव मी 1 सेकेंड. वेरी फर्स्ट लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है नम्स दिया हुआ है, राइट. लेट मी इंक्रीज लिटिल बिट. ओके, हम लोग क्या करेंगे, इंट n लिखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, nums डॉट लेंथ, correct. Then what we should do, we'll find number of ones, right, number of ones we can say that, yeah, ones we can say that also. Let's write and start with the 0. अभी कोई ones नहीं है हमारे पास. हमें सिंपली सारे ones फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगा लेंगे. फॉर लूप लगाओ और लेट्स सपोज कॉल इंट x एंड ले लो इस एरे के ऊपर लूप लगा लो, राइट. एंड हियर इटसेल्फ वी कैन डू इज हमें कंडीशन लगा लेंगे, इफ x इक्वल टू 1. अगर ऐसा केस हो रहा है, राइट, सिंपली विल डू व्हाट, वंस प्लस प्लस. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, जितने भी वंस हैं हमारा, जिसकी वैल्यू वंस है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है. प्लस प्लस हमने कर लिया है, करेक्ट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. अब ये सोचो कि अगर इफ देयर आर ऑलरेडी वंस एंड ईच नन वंस नीड वन ऑपरेशंस, राइट, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट. ऐसे समझो कि इफ there are already ones, right, and each none one needs one operations. Can we say that? Can we say that? मतलब if we will write ONS if it is greater than 0, simply it means we will return n minus the number of ones, right, ONS. simply समझ में आया. मतलब अगर हमें पहले से पता हो तो हमने पहले पता कर लिया कितने वंस चाहिए, n माइनस ये कर देंगे, वहां पे हमें आंसर मिल जाएगा, करेक्ट. अब लेट्स सपोज कि हमें इफ देर इज नो वंस, राइट, उस केस में क्या करेंगे, सिंपली तो अदर केसेस में जाएंगे. पहला केस तो कंप्लीट हो गया कि हमें वंस हमें पता है हाउ मेनी वंस आर देयर, और उसके बेस पे हम निकाल लेंगे, इट विल रिटर्न द लाइन नंबर 12 गिव यू द रिजल्ट. नेक्स्ट विल से इफ नो, ये जो वंस है हमारे पास, देयर इज नो वंस आर देयर, right, it means we have to find the shortest sub array, we can say that, right, shortest, like this we can say we have to find the shortest sub array. Can we say that? Whose GCD is what, is 1, correct. या मतलब अगर हम एक वैल्यू ले ले जो मिनिमम लेंथ को फाइंड करना है, तो क्या बोलेंगे, इंटीजर का जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है और इन्फिनिटी वैल्यू भी बोल सकते हो, वी कैन टेक दैट, राइट. इससे क्या होगा, अगर मैक्सिमम इन्फिनिटी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, वी कैन आइटरेट एंड वी कैन फाइंड द मिनिमम. जहाँ भी मिनिमम मिलेगा हमें उसे अपडेट कर लेंगे, राइट. And for that what do we need to do, we will create a for loop and we'll say start with int I equal to
लेट्स सपोज आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, आई शुड लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अरे के एलिमेंट लगाने के तो आइट्रेट करने के लिए सिंपल फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। लेट्स सपोज कोई हम एक जी वैल्यू ले लेते हैं जो इनिशियली में कितना है 0 है, और सारे वैल्यूज हमें आइट्रेट करना है, राइट। टू वैल्यू यूज करना है जीसीडी के लिए, एटलीस्ट ए एंड बी, राइट। मीन्स हमें एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो हम जे से स्टार्ट कर सकते हैं, इंट जे। एंड जे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई से स्टार्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड जो जे जो है लेस देन एन करेंगे एंड जे प्लस प्लस कर लेंगे, तो आई और जे हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो जी है वो हम लोग अपडेट करेंगे कैसे, एक लेट्स सपोज कि एक फंक्शन बना है जी सी डी, ठीक है। एंड वी विल पुट जी एंड द नम्स एट जे, ठीक है। वी विल, because we have already some GCD we have, right, and that GCD is nothing but G value and we are updating the value, right. So we can update from here, right. Means this is nothing but we can say the running GCD of nums from you can say I to the J, मतलब जो हम सब यूज करेंगे, राइट, उसके लिए, करेक्ट, सिंपली। अब लेट्स सपोज कि जो g की वैल्यू है, मतलब जो GCD आया है, राइट, इफ g इज नथिंग बट इक्वल टू 1, राइट, GCD इज इक्वल टू 1, इन दैट केस, सो यहाँ आप बोल सकते हो नथिंग बट हम लोग कंपेयर करने चले हैं, राइट। तो GCD इज नथिंग बट इक्वल टू 1, इसीलिए यहाँ जो GCD है इफ इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अपडेट कर लेंगे जो मीन लेंथ हमने यूज़ किया है, राइट, ऊपर। सो मीन लेंथ यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, मैथ डॉट मीन करेंगे और यहाँ से ट्रैक करते जाएंगे मीन लेंथ, और क्या करेंगे जे माइनस आई प्लस 1। सिंपली हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर लेट सपोज ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम उसको ब्रेक कर लेंगे। वाई वी आर गोइंग टू ब्रेक हियर, बिकॉज फॉर दिस आई वी कैन से वी फाउंड द स्मॉलेस्ट जे, करेक्ट। इफ वी फाउंड द स्मॉलेस्ट जे, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स नो नीड टू एक्सटेंड। समझ में आया, सिंपली अगर हमारे जो भी हम आई यूज कर रहे हैं, राइट, फॉर इन दिस आई हमने मीन लेंथ निकल गया, तो वी हैव फाउंड द स्मॉलेस्ट जे, एंड सो दैट हमारा जो सब एरे है वो हमें उस रेंज में आ जाएगा, राइट, जो नम्स एट आई टू जे बोल सकते हैं, राइट, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो रनिंग GCD जो है जे आई टू जे हमें मिल जाएगा, और उस पर हमें मिलने के बाद सिंपली बात है वहाँ पे ब्रेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स सपोज यू कंप्लीटेड दिस फॉर लूप, सिंपली यू कंप्लीटेड दिस फॉर लूप, नाउ यू विल जस्ट नीड टू चेक कि क्या हमारा जो मीन जो वैल्यू हमने अपडेट किया ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ, राइट। और लेट्स से टू हियर दैट जो वैल्यू हमने अपडेट किया है वो स्टिल हमारे पास क्या है, सेम है, हमें कुछ मिला नहीं, राइट, ये मीन लेंथ जो है नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे -1। तो यही मैं उस समय समझा रहा था कि अगर इन्फिनिटी वैल्यू रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई लेंथ नहीं मिल रहा है हमें, राइट, जहाँ पे हम GCD वैल्यू फाइंड आउट करें इक्वल टू 1 के लिए, राइट। इफ GCD इक्वल टू 1 आता है, इन दैट केस ओनली यू विल हैव सम क्या कहते हैं नम्स फ्रॉम आई टू जे, right, that have the GCD is equal to 1, right. Otherwise अगर GCD 1 नहीं आता है तो you cannot update all the values as a 1, और उस केस में हमें क्या रखना, मीन लेंथ हमें इनफाइनाइट रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, तो रिटर्न कर देंगे -1। मीन्स हम बोल सकते हैं ये क्या है, इम्पॉसिबल है, अंडरस्टैंड। नाउ थिंक अबाउट इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन इक्वल टू हमें लेके आना पड़ेगा मीन लेंथ -1,
right, to create 1 plus n minus 1 to spread it। ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर दो। आप कर दो कि मीन जो लेंथ है -1 प्लस n माइनस 1। समझ में आया? जो हमने बताया था लेंथ के उसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो मीन लेंथ -1 प्लस n माइनस 1, राइट, मीन्स दिस इज नथिंग बट, जो मैंने आपको बताया था, ये इक्विवेलेंटली आप बोल सकते हो, जो मैंने बताया था ना, रिटर्न कर दो n प्लस मीन लेंथ, राइट, -2, वैसा वाला एग्जैक्टली उसके बराबर होगा। अब हमने सब चीज़ ऑलमोस्ट कर लिया है, राइट, तो सबमिट कर सकते हैं। आई गेस GCD हमने नहीं बनाया है, ये GCD फंक्शन है, राइट, तो एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। क्या हो गया इधर जो, लेट सपोज कि जो GCD फंक्शन है उसको हम हेल्पर मॉक फंक्शन आता है, लिखते हैं प्राइवेट, इट शुड रिटर्न इंटीजर एंड विल कॉल दिस GCD एंड विल पास टू थिंग्स, इंट a ले लो, राइट, इंट a एंड इंट b, ठीक है। देन वी विल पास, विल चेक द वैल्यू, राइट, लेट सपोज अंटिल while b नॉट इक्वल टू 0, जब तक b 0 नहीं होता है, राइट, until that we'll say update temp, we'll take the temp of the remainder value a and b, ठीक है। then just a equal to b and b equal to c and you will return a, तो वहां से अपडेट होता जाएगा GCD वैल्यू, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू गाइस, ओके। let me submit first। so this is working, let me submit this। okay, so this is working fine। if you have any doubt let me know in the comment section। मैंने ये बहुत टाइम पहले क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो इसीलिए मुझे आइडिया भी है थोड़ा सा, और मिनिमम ऑपरेशंस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ऑलरेडी अवेलेबल है LeetCode पे, जो कि मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखेंगे जब कंटेस्ट का प्रॉब्लम दोगे, राइट, दैट टाइम यू विल सी। बट इफ़ यू वांट द स्ट्रक्चर वे ऑफ लर्निंग कि कैसे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है करने के लिए, राइट, कोडिंग, एंड यू वांट टू लर्न इन सिस्टमेटिक वे, राइट, you can reach out to me and you can also join our premium courses on YouTube also, if you don't want, if you have a preferred time, if you want to go by the preferred time। so मैं premium videos डालना start किया हूँ, you can watch systematically on the daily basis। I am going to push on the daily wise on the member request, and I'll start putting the कंटेंट इन सच ए वे एनीबडी कैन डू द प्रिपरेशन। कोई भी बच्चा है जो स्टार्टिंग बिगिनर है और एनी लेवल पे है, राइट, ही वांट टू डू प्रिपरेशन फॉर द फैंग इंटरव्यूज और एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ही कैन प्रिपेयर द DSA, एंड एज वेल एज आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट द स्प्रिंग बूट एंड जावा videos on the premium membership। so you can use the join button and you can join the membership, and you can request what type of course you want and what type of video you want, right, what do you want to learn, you can provide the comment, you can get the membership there, okay। thank you guys, I know you understand the membership value, and if you want to be in the systematic way of learning, proper learning, right, you and proper guidance, reach out to me or you can join the YouTube join button। thank you for watching this video, I'll see you in the next one।